Question number 8. Mention a few distinguishing features of the Chalcolithic culture. अब हमें क्या बताना है? Chalcolithic culture के कुछ distinguished feature हमें बताने हैं, right? That what were the features of Chalcolithic culture? The Chalcolithic culture in India traditionally include non-urban, non-Harappan cultures. अब traditionally क्या include होता है इसमें? Non-urban और non-Harappan cultures. इसका मतलब क्या है? Which made their first appearance around 2000 BCE. और सबसे पहले ये जो चालकोलिथिक कल्चर है कब दिखाई दिया था, मतलब कब चालकोलिथिक कल्चर में लोगों ने उनकी जो लिविंग्स है वो अडॉप्ट की थी, वो 2000 BCE के अराउंड अपीयर हुआ था. The Chalcolithic people built rectangular and circular houses of mud, mostly in cluster. अब Chalcolithic पीरियड में लोग जो अपने घर बनाते थे, राइट, वो जनरली रेक्टेंगुलर शेप में होते थे, राइट, जैसे रेक्टेंगुलर शेप होता है. वेट फॉर अ सेकेंड. Okay, so this board is visible to you, right? ओके, सो चालकोलिथिक कल्चर में जनरली लोग क्या करते थे? नॉन अर्बन और नॉन हैरप्पन थे, और वो अपने जो हाउसेस थे वो कैसे बिल्ड करते थे? या तो रेक्टेंगुलर शेप में करते थे या सर्कुलर शेप में करते थे. और जनरली ये क्या होते थे? क्लस्टर्स में होते थे. क्लस्टर मतलब ग्रुप्स में. तो सपोज दिस इज एन एरिया, एक एरिया है, वहां पे सारे जो हाउसेस होते थे वो कैसे होते थे? रेक्टेंगुलर शेप के होते थे, राइट? और या फिर वो सर्कुलर शेप में होते थे. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो हाउसेज है वो सर्कुलर फॉर्म में होते थे. क्लस्टर, क्लस्टर मतलब क्या होता है? ग्रुप में, राइट? Fireworks, no, sorry, they were not adequate with acquainted with burnt bricks, और वो किससे? burnt bricks से बने हुए नहीं होते थे. Fire worship seems to have been a very widespread phenomena among the Chalcolithic people, as fire altars have been found at numbers of sites. अब फायर वर्शिप इट मीन्स कि वो लोग फायर की वर्शिप करते थे. और फायर अल्ट्रास क्या होते हैं? जो चूल्हे हम लोग देखते हैं जनरली रूरल एरियाज में, जो विलेज एरियाज में लोग चूल्हों पर खाना बनाते हैं. जनरली वो क्या करते थे? लकड़ियों को जलाकर जिस पे फूड बनाते थे. हमने कई विलेजेस एरिया में देखे होंगे. उन फायर अल्ट्रास का यूज करते थे. एट द इनामगांव in Maharashtra Chalcolithic site, the dead were buried in urn under the floor of their house in north-south direction with some articles. अब इनामगांव महाराष्ट्र में एक चालकोलिथिक साइट है जहां पर क्या मिला है? बेरिड डेड मिले हैं साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और उनके साथ कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो भी देखे गए, और उनके घरों में ही उन्हें बैरिड कर दिया जाता था. द गुड्स बैरिड विद डेड गिव्स इंडिकेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ द डेड पर्सन. अब उन डेड पर्सन के साथ में जो भी सामान दफनाया जाता था वो क्या इंडिकेट करता है कि वो पर्सन का स्टेटस क्या था? वो रिच था या पुअर था? अगर ज्यादा सामान है तो इससे क्या इंडिकेट होता है? कि वो पर्सन रिच था. अगर कुछ लिमिटेड चीजें हैं तो इससे क्या इंडिकेट होता है? कि वो पर्सन पुअर था. ठीक है, तो हु विल रीड दिस आंसर? ओके, रीड दिस आंसर. उम्मे हनी. Okay, ma'am. Question number 7. No, sorry, question. The Chalcolithic culture
in India traditionally included non-urban, Urban, non-Harappan urban. culture, Harappan culture, which made their first appearance Appearance. appearance around 2000 BCE. The alcoholic pupil Chalcolithic. Chalcolithic pupil built rectangular and circular houses of mud, mostly in Clusters. clusters. They were not ex- Acquainted. acquainted with burnt bricks, fire, Burnt. It's burnt bricks. burnt bricks. Fire worship seems to have been a very wide, wide- widespread 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 peni- pe- pe- penimo- peni- phenomena. phenomena among the chalcolithic pupil People pupil as as fire ultras have been found at a number of sites sites. at Inamogan in Maharashtra. Inamog in Maharashtra, a chalcolithic sits. The dead were site. The dead were buried in urns under the floor of their houses in north-south direction, with some arthalics, the goods buried with the dead give indication about the status of the dead person. Okay, very good. That's good. Now, so I hope this question ये आपको समझ में आ गया होगा. Next, write a short note in Inam Gaon. It's a name of a village. Inam Gaon, right? So Inam Gaon के बारे में हमें short note लिखना है. So basically Inam Gaon कहाँ है? महाराष्ट्र में है. कहाँ है? महाराष्ट्र में है. Then here burials were different. अब यहाँ पे जो burials थी वो different थी. Likewise, generally adults were buried with their head in the north direction. अब जो adults होते थे, adults किसको बोलते हैं? जो 18 years old होते हैं, वो लोग north direction में उन्हें क्या किया जाता था? Buried किया जाता था. उनका हेड नॉर्थ डायरेक्शन में होता था. समटाइम्स द डेड वर बेरीड इन द अर्न विद इन द हाउसेस. अब कभी कभी इन डेड्स को उनके हाउसेस में ही क्या कर दिया जाता था? बेरीड कर दिया जाता था, मतलब दफन कर दिया जाता था. समटाइम्स द ओके हियर द बॉडी ऑफ अ नेम Chalcolithic age is older than Harappan age. Yes, Chalcolithic age is older than Harappan age. ऐसा माना जाता है. ठीक है? ओके. तो उन्हें अपने हाउसेस में ही क्या कर दिया जाता था? बेरिड कर दिया जाता था. Here the body of man was found buried in cross-legged position in a huge 4-legged clay jar in one of the largest house at site. अब एक हाउस में क्या है
कि एक बॉडी बेरिड की गई और उसको क्रॉस लेग कर दिया गया, मतलब क्रॉस लेग आप समझते हो ना, जैसे आप बैठते हो क्रॉस लेग करके, ऐसी पोजीशन में उसे बेरिड किया गया और उसके पास में 4 जार रखे गए क्ले के, राइट, और उसे बेरिड किया गया। देन द हाउस हैड 5 rooms and was located at the center of the इनामगांव सेंटर। अब जो हाउसेस होते थे उनके 5 रूम्स होते थे उन हाउसेस में, और जनरली वो क्या है, इनामगांव के सेंटर में सेटल थे। देन पीपल ऑफ इनामगांव फॉलोड वेरियस ऑक्यूपेशन। अब इन ये जो विलेज है इनामगांव जो महाराष्ट्र में, यहाँ के लोगों का बहुत सारा ऑक्यूपेशन था, राइट, उनकी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स थी, जैसे कि फर्स्ट वन हमने पढ़ा था कि वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, कभी कभी क्राफ्टमैनशिप करते थे, एटसेट्रा। नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, पीस, सीसैम एंड मिलेट्स। अब आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जिससे क्या पता चलता है, मतलब वो एविडेंसेस क्या थे, व्हीट मिला है, व्हीट मतलब क्या होता है, गेहूं, बार्ले मिला है जिसको हम ज्वार बोलते हैं, राइस मतलब चावल, पल्सेस मतलब दाल, सीसैम एंड मिलेट्स। यस, यस, व्हाट हैपेंड? मैम जी मैम स्क्रीन है ना मैम, ये बता रहे हैं कि एमजेएनएस स्कूल हैज स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग मैम, और आपकी आवाज भी अटक अटक के आ रही है मैम। तो स्क्रीन शेयरिंग आपको बोर्ड दिख रहा है ना, आपको बोर्ड दिख यस रहा है मैम, ना? वो दिख रहा है मैम बोर्ड, तो मैम बस, बोर्ड में ब्लर हो रहा है मैम। तो बेटा वो एक्चुअली आपके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, इस कारण से आपको ब्लर दिखाई दे रहा है। आप नेट ऑन कर ऑफ करके ऑन कर ली, ठीक है? वो जब भी मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन करती हूँ ना तो स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर देती हूँ, तो आपको बोर्ड दिखने लगता है, ठीक है? और जैसे ही ऑफ करती हूँ तो आपको वो पीडीएफ दिखने लगता है जो क्वेश्चन आंसर्स का। आगे समझ में? Okay, bones of several animals like goat, cattle, buffalo, dog were found। और बहुत सारे एनिमल्स की क्या मिली है, बोन्स मिली है, ठीक है? नेक्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है ऋग्वेद को। ऋग्वेद जो वेद होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेद। हमने कल पढ़ा था कि 4 तरीके के वेद होते हैं, उसमें हमें किसके बारे में बताना है, ऋग्वेद। गॉट इट? अब ऋग्वेद के बारे में हमें एक्सप्लेनेशन देना है। सो ऋग्वेद क्या है? ओके, सो ऋग्वेद इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल 4 वेद्स। अब ऋग्वेद कितने, 4 वेद पढ़े हमने, राइट? और उसमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, ऋग्वेद है, राइट? ओल्डेस्ट वेद इज ऋग्वेद। गॉट इट? इट was composed about 3500 years ago। और ये कब कंपोज किया गया था? Who is this? Unmute me please, नाम बताइए आप। या फिर हैंड रेस कर दीजिए। वैशाली, yes, unmute yourself। विशाली, ओके, सो लेट गो बैक टू दिस ऋग्वेद। सो ऋग्वेद क्या है, सबसे ओल्डेस्ट वेद है चारों वेद में से, और ये कितने साल पहले लिखा गया था या कंपोज किया गया था? अराउंड 3500 ईयर्स अगो।
3,500 years ago, राइट? तब इसे कंपोज कर दिया गया था. इट कंटेन्स 1028 हेम्स. अब इस बिग पेज के अंदर कितने हैं? 1028 हेम्स हैं. हेम्स का मतलब मैंने आपको बताया है, मतलब भजन, जो हम, जिसे हम भजन बोलते हैं. ठीक है, ये हेम्स इसमें है. विच आर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, और इनको भी फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. राइट? इट इज कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि, द फायर गॉड. अब इनमें ये जो हेम्स है, ये जो भजन है, कौन कौन सी गॉड के लिए है? ये हेम्स है सबसे पहले अग्नि के लिए. अग्नि इज अ गॉड ऑफ फायर, राइट? Agni is a god of fire. Then next one is Indra. Indra is a god of the warrior god. Indra is a warrior god. Then Varun Dev. Then Surya Dev. Surya, right? And other gods by various families of poet and sages. और भी बहुत सारे गॉड हैं जो पोएट्स और सेजेस, जिन्हें कहते हैं हम संत और पोएट, उन्होंने ये, उनके ऊपर, इन सब के ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये हेम्स या प्रेयर्स लिखी गई हैं. सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. सो नाउ हु विल रीड दिस आंसर? Okay, Husaina. Wait a second. Okay, read this answer, write a short note on Inam Gum. Inam Gum, it is a charcoalic site located in Maharashtra. Here burials were different. Generally, adults were buried with their head in the north direction. Sometimes the dead were buried in urns within the houses. Here the body of a man was found buried in a cross-legged position in a huge four-legged clay jar in one of the largest house at the site. The house had 5 rooms and was located at the center of the Inamagan Gown settlement. The people at Inam Gown follow to various occupations. Archaeologists have found evidence of wheat, barley, rice, pulses, peas, seeds, and millets. Bones of several animals like goat, cattle, buffalo, dogs. Rigveda. The Rigveda is the oldest of all the 4 Vedas. It was composed about 3,500 years ago. It contained 1,028 humans, which are divided in mans,
which are divided into 10 parts. It is a collection of prayers offered and Agni. Agni. The fire Agni. The fire god Indra, warrior god Varuna, Surya, and other gods by various families of poets and sages. Sages. Stages. Sages. Stages. स्टेजेस नहीं बेटा, सेज. सेज हम एज बोलते हैं ना, सेज. Age. सेज. सेज. Age. ओके. Sage. हाँ, गुड. ओके. नाउ क्रॉस लेग का मतलब होता है बेटा क्रॉस करे हुए लेग. जैसे आप बैठते हो, आप खाना खाने बैठते हो तो क्रॉस लेग करके ही बैठते हो ना. दैट इज कॉल्ड क्रॉस लेग्ड पोजीशन. सो उस पोजीशन में उन्हें क्या किया गया, बेरीड किया गया. ओके. तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया. व्हाट फैमिलीज. एक काम कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मुझसे पूछिए. यस, व्हाट हैपेंड. जिसे डाउट है सिर्फ मुझे के बाद families से इट लाउडर. वेट. जिसे डाउट नहीं है वो अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा या नहीं करेगी. गॉट इट. यस अमृता, डू यू हैव डाउट. अमृता. ओ पता नहीं जी कौन क्या करता है यार मेरा. यस हुसैना, व्हाट हैपेंड. मैम गॉड बाय वेरियस के बाद है ना फैमिलीज. वेरियस फैमिलीज. यस, उसमें क्या डाउट है बेटा. मैम वो मीनिंग समझ नहीं आ रहा. अच्छा, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है. वेट अ सेकेंड, बताती हूँ. ओके, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि. अब ये क्या है, ऐसी प्रेयर्स हैं जो अग्नि गॉड को ऑफर की गई हैं, जो कि गॉड ऑफ फायर है. इंद्र जो वॉरियर गॉड है. देन वरुण, सूर्यदेव एंड अदर गॉड्स बाय वेरियस फैमिलीज ऑफ पोएट एंड सेजेस. अब ये जो जितनी भी प्रेयर्स हैं, ये कलेक्शन जो है, जो इतने सारे गॉड को दिया हुआ है, अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को, और जितने भी गॉड हैं, किसने लिखा है. बाय. बाय मतलब किसने किया है, फैमिलीज ने. किनकी फैमिलीज ने, पोएट की और सेजेस की. सेजेस किसे बोलते हैं, संत को. ठीक है हुसैना, समझ में आया. यस मैम. ओके. यस सफीना, व्हाट इज योर डाउट. मैम ये ह्यूमंस का मतलब क्या होता है. 1028 हेम्स है वो. यस मैम, इनका मतलब क्या इसका होता है. मतलब होता है जो सॉन्ग्स, जो भजन होते हैं ना, जो प्रेयर्स होती हैं, यस मैम. उसे बोलते हैं हेम्स. यस मैम. ठीक है. यस मैम. ओके, म्यूट कर लो अपने आप को. यस ताहा, व्हाट इज योर डाउट. मैम सेजेस का मीन्स क्या होता है मैम. सेजेस का मतलब होता है संत. जो संत लोग होते हैं ना, जो ऋषि वगैरह जो होते हैं, ऋषि मुनि. समझ में आया. यस मैम. ओके. पराग, व्हाट इज योर डाउट नाउ.
मैम वरुणा का मीन्स क्या होता है? वरुण इज अ देव, वरुण देव, ओके मैम। ये गॉड का नाम है। जैसे इंद्रदेव है, अग्निदेव है, ऐसे वरुण देव है। वरुण देव इज अ गॉड ऑफ एयर। यस मैम। ओके, तो सिर्फ व्हाट इज योर डाउट नाउ? लीग्ड मीन्स क्या होता है? क्या मैम लीग्ड मीन्स क्या होता है? लिग्ड, लैग्ड है वो, क्रॉस लैग्ड मतलब करके बैठा हुआ। जैसे आप बैठते हो ना, बैठने की पोजीशन कैसी है? आप पैरों को क्रॉस करते हो ना, क्रॉस यस लेग, मैम। दैट इज यस कॉल्ड मैम। क्रॉस लेग पोजीशन। ओके, now what changes took place in economic life of people in early Vedic and later Vedic period? अब early Vedic और later Vedic period में विशाली, do you have any doubt? मैंने आपको पहले भी बोला है अनम्यूट करो, बट आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। ओके, सो अर्ली वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में क्या डिफरेंसेस थे? तो अर्ली पीपल इन अर्ली वैदिक पीरियड प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। अब अर्ली वैदिक पीरियड में, जब वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था, उसमें लोग क्या प्रैक्टिस करते थे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे और कैटल रियरिंग प्रैक्टिस करते थे। ठीक है, यस, व्हाट हैपेंड? मैम फैमिलीज का मतलब क्या होता है? फैमिली मतलब फैमिली, परिवार। आपकी फैमिली है ना? यस मैम। दैट इज कॉल्ड फैमिली। तो यहाँ पे क्या है? फैमिलीज ऑफ पोएट एंड सेजेस। पोएट और जो सेजेस है, उनकी फैमिली ने वो प्रेयर्स लिखी हैं। ओके, यस मैम। ओके, ना अब अर्ली वैदिक पीरियड में वो लोग क्या प्रैक्टिस करते थे? एग्रीकल्चर करते थे विद कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग मतलब एनिमल्स को, कैटल्स को डोमेस्टिकेट करना, पालना। इन लेटर वैदिक पीरियड एग्रीकल्चर बिकेम द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और लेटर वैदिक पीरियड में सबसे मेन उनका जो लाइवलीहुड है, वो उसका सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर। ना The Rigved suggests the cattle formed the most important form of wealth for people. अब ऋग्वेद बताता है कि कैटल्स जो थी वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म था वेल्थ का। जिसके पास जितनी ज्यादा कैटल्स थी, जितनी ज्यादा काउ थी, उतना ज्यादा उसे वेल्थी माना जाता था। इट वॉज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ आयरन टूल फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड प्लगिंग। अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या किया जाने लगा? आयरन टूल का यूज किया जाने लगा फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए और प्लगिंग के लिए। ठीक है, यस ताहा, व्हाट हैपेंड? मैम ये जो मैम जैसे केक है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड में, उसके सामने इकोनॉमिक लाइफ लेटर वैदिक पीरियड। मैम इकोनॉमिक लाइफ का मतलब मैम क्या हुआ? इकोनॉमिक लाइफ ऑफ लिखा है बेटा। इकोनॉमिक लाइफ मतलब क्या होता है कि कैसे वो अपनी लाइफ को चलाते थे, कैसा उनका लाइवलीहुड था, कहाँ से वो पैसा कमाते थे, क्या उनका ऑक्यूपेशन था। समझ में आया? यस मैम। इकोनॉमिक और मतलब कि वो सारी चीजें जो उनके ऑक्यूपेशन से या उनकी इनकम से रिलेटेड हो। ठीक है, यस मैम। मैम सेकंड वाले पॉइंट पे मैम, फोर्थ वाला मैम उसका, उसमें सीम्स लिखा है मैम, उसका मतलब कहाँ है बेटा? मैं सेकंड वाले ये तो में मैंने अभी फोर्थ वाला। समझाया ही नहीं है। ओके मैम। ठीक है, यस ताहा, आपने प्रेजेंट किया है। सफीना, व्हाट हैपेंड? मैं हमने डाउट पूछ लिया। ओके मैम ये फ्रीक्वेंट बैटल फॉर कैटल का मतलब क्या है? मतलब फ्रीक्वेंट बैटल फॉर कैटल का मतलब है कि मैंने आपको क्या बताया कि जितनी ज्यादा काउ जिस पर्सन के पास होती थी उसे वेल्थी माना जाता था। सो एवरीबडी वांट्स टू बिकम वेल्थी। सब क्या चाहते थे? कि हम अमीर बने। तो
फ्रिक्वेंट वार मतलब एक के बाद एक लड़ाई होती थी, बैटल्स होते थे कैटल्स के लिए। किसके लिए? कैटल के लिए। समझ में आया? ओके, now there were frequent battle for cattle. Next, shift from pastoral economy to agriculture economy seems to have led to the rise of other art and crafts such as carpentry, weaving, ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग एंड पोट्री मेकिंग। अब सिंस पेस्टोरल इकोनॉमी किसको बोलते हैं? जिसमें एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं, काउ, शेप, गॉट, इसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? पेस्टोरल इकोनॉमी, जिसमें वो लोग अपना जितना भी इनकम है वो एनिमल्स के थ्रू करते हैं। लेकिन उससे उन लोगों ने काय पे शिफ्ट किया? एग्रीकल्चर पे शिफ्ट किया। दैट इकोनॉमी इज कॉल्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो इसके कारण जैसे ही उन्होंने पेस्टोरल इकोनॉमी से एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, ठीक है, उसके कारण बहुत ज्यादा चीजें बढ़ गई, मतलब राइज हुआ आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क। लोग किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए? आर्ट एंड क्राफ्ट के काम की तरफ भी अट्रैक्ट हो गए। अब आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कैसा? कारपेंट्री मतलब कारपेंट्री, वो फर्नीचर जो बनाते हैं कारपेंट्री करने लगे। वीविंग, क्लॉथ को वीविंग करने लगे, राइट। ज्वेलरी मेकिंग, डाइंग मतलब कपड़ों पे कलर करना, एंड पोट्री मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ कैटल कैन बी जज्ड from the word of battle, गविष्ठी, which means search for cow। अब कैटल्स का जो इम्पोर्टेंस है, मैंने आपको क्या बताया कि वैदिक पीरियड में किसके लिए लड़ाई होती थी? काउस के लिए लड़ाई होती थी, कैटल्स के लिए लड़ाई होती थी, राइट। अब कैटल्स के इम्पोर्टेंस हम किससे देख सकते हैं? गविष्ठी वर्ड हमारे वेद में यूज किया गया है, मतलब सर्च फॉर काउ, काऊ को सर्च करना और उसे अपने अंडर ले लेना, क्योंकि जितनी काऊ होती थी उतना ज्यादा उसे वेल्थी माना जाता था। ओके, नेक्स्ट, लेटर वैदिक पीरियड अगर हम देखते हैं तो देयर सीम्स टू हैव बीन ट्रेड विद डिफरेंट रीजन एज वेल। अब वहां पे इनकम के लिए वो क्या करते थे? दूसरी रीजन मतलब अलग अलग प्लेसेस पर ट्रेड करते थे, मतलब अपने सामान को कहीं और जाकर बेचते थे। ओके, नेक्स्ट, डिस्कस द सोशल डिविजन्स ऑफ वैदिक सोसाइटी। वैदिक सोसाइटी के सोशल डिविजन्स, ठीक है, सोशल स्टेटस बोल सकते हैं हम। The Rigved mentions social classes on the basis of type of work people did। अब social classes किसके ऊपर बेसिस होती थी? उनका बेसिस क्या था? जिस तरीके का काम वो करते थे। The group of people were formed, rituals were called Brahmins। अब वो ग्रुप जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उन्हें क्या कहते हैं? ब्राह्मिन्स कहते थे। ब्राह्मिन्स रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे, या इंग्लिश में कहें तो उसे प्रीस्ट कहते हैं। इंग्लिश में ब्राह्मण को क्या कहते हैं? प्रीस्ट कहते हैं। The term rajas refer to the people who protected people from invader। अब राजा वर्ड का यूज किया गया उन पर्सन्स के लिए जो लोगों को अटैक करने वालों से बचाते थे। इन्वेडर का मतलब क्या होता है? अटैक करने वाला पर्सन, ठीक है, तो उस पर्सन को राजा कहा जाता था। द टर्म विश एंड जन वर यूज्ड टू रेफर कॉमन पीपल। अब विश और जन कॉमन लोगों को कहा जाता था। द टर्म विश्या डिराइव्स फ्रॉम विश। अब विश्या टर्म निकला है विश से। द कम्युनिटी एज अ होल वाज अ टर्म एज जना। और पूरी कम्युनिटी को वो क्या बोलते थे? जन बोलते थे, एटसेट्रा। द ग्रुप ऑफ पीपल हु अपोज्ड आर्यंस वर डिक्लेयर्ड एज दासास एंड दासीज। अब वो लोग जिन्होंने पूरे ग्रुप को अपोज किया, मतलब पूरे जन को अपोज किया, उन्हें क्या कहा गया? आर्यंस कहा गया। These people spoke different languages and did not perform sacrifices। ये जो लोग थे आर्यंस, ये अलग तरीके की लैंग्वेज बोलते थे और सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म नहीं करते थे। Later the term das come to refer as slave or women and men captured in war। और फिर कुछ टाइम बाद दास किसे कहा जाने लगा? स्लेव को, नौकर को, ठीक है। They were the प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन ऑनर्स। और ऐसा माना जाता था कि ये जो स्लेव्स हैं ये इनके ऑनर की प्रॉपर्टी हैं। द अर्ली वैदिक सोसाइटी डिड नॉट हैव क्लास और कास्ट डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन बर्थ। लेकिन जो अर्ली वैदिक सोसाइटी थी उसमें कास्ट और क्लास डिस्टिंक्शन बर्थ के बेसिस पर नहीं होते थे। किसके बेसिस पे होते थे? उनके काम के बेसिस पे, उनके ऑक्यूपेशन के बेसिस पर।
ग्रेजुअली दिस डिस्टिंक्शन बिकम रिजिड, और ये धीरे धीरे ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये रिजिड हो गए, मतलब कठोर हो गए. By the later Vedic period, the society clearly divided 4 distinct classes based on their birth, later position occupied by Shudra. Okay, so यही आपका homework है. Your homework is that you have to learn history का chapter number 5. Read, learn and write histories chapter number 5 full. ठीक है, हिस्ट्री का पूरा